Okay, students, now take out your pencils and put your index finger. We are gonna start reading of this poem. साथ साथ आपको क्या करना कि you will have to underline the words, okay? Difficult words, and we'll write the meanings of these difficult words, okay? So the very first stanza is: Old man once he built an ark and patched it up with hickory bark. He anchored it to a great big rock, and then he began to load his stock. The animals went in one by one, the elephant chewing a carry bun. The animals went in two by two, the crocodile and the kangaroo. The animals went in three by three, the tall giraffe and the tiny flea. The animals went in four by four, the hippopotamus stuck in the door. The animals went in five by five, the bees mistook the bear for a hive. The animals went in six by six, the monkey was up to his usual tricks. The animals went in seven by seven, said the ant to the elephant, "Who are you, Sean?" The animals went in eight by eight, some were early and some were late. The animals went in nine by nine, they all found forts and marched in line. The animals went in 10 by 10, if you want any more, you can read it again. Okay, students, come towards first stanza. Old man once he built an ark. Old man बूढ़ा आदमी. Once एक दफ़ा. He built an ark. Built the second form of build. तामीर करना, बनाना. Ark कश्ती. एक दफ़ा एक बूढ़े आदमी ने कश्ती बनाई. Underline the word built and ark. And patched it up with hickory bark. Patched means मुरम्मत करना, ओके? हिकरी अमेरिकी अखरूट का एक दरख्त होता है, बार्क दरख्त का तन्ना, और उसको क्या किस चीज़ से फिर उसकी मुरम्मत की, कवर किस चीज़ की उसके ऊपर चढ़ाई, हिकरी बार्क की, अमेरिकी अखरूट का जो दरख्त था सही ना, उसके तन्ने से क्या किया, उसके तन्ने से इसको कवर किया. अंडरलाइन द वर्ड पैच्ड, underline the word hickory and underline the word bark. Okay, line number third. He anchored it to a great big rock. Underline the word anchored, underline the word rock. He anchored it, उसने फिर क्या किया कि इसका एक लंगर बनाया, इसको बांध लिया to a ग्रेट बिग रॉक, एक बहुत बड़े चट्टान के साथ. किस चीज़ को, इस कश्ती को उसने एक बहुत बड़े चट्टान के साथ बांध दिया. एंड देन ही बिगैन टू लोड हिज स्टॉक. अंडरलाइन द वर्ड लोड, अंडरलाइन द वर्ड स्टॉक. और फिर उसने अपने मवेशी को, स्टॉक मीन्स माल मवेशी जो थी उसके जानवर जितने थे उन सब को क्या किया, लोड मीन्स लादना, सही ना, कश्ती के ऊपर बैठाना. उन सबको कश्ती के ऊपर उसने फिर क्या किया, बैठा दिया. Okay, students, come towards the difficult words meanings of stanza number first. The very first is built. Built means तामीर किया, बनाया. The second one is ark. Ark means कश्ती. Third one is patched. Patched, the second form of patch means मुरम्मत करना. Okay, मुरम्मत किया, मुरम्मत की, सॉरी. हिकरी दरख्त का नाम है. अमेरिका में एक अखरूट का जो दरख्त होता है उसको हिकरी कहते हैं. बार्क मीन्स दरख्त का तन्ना. एंकर्ड, द सेकेंड फॉर्म ऑफ एंकर मीन्स जहाज़ का लंगर, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि उसको बांध दिया. रॉक मीन्स चट्टान, बड़ा पत्थर जो होता है. लोड मीन्स लादना. स्टॉक मीन्स मवेशी, जानवर जो होते हैं जो आप पालते हो, सही है ना, उसको कहते हैं स्टॉक. Okay, now come towards stanza number second. The animals went in one by one. Went in का मतलब है, in means अंदर, went चले गए, one by one एक एक करके, जानवर एक एक करके चले गए. किस चीज़ के अंदर, कश्ती के अंदर. ओके.
द एलिफेंट्स द एलिफेंट चिविंग अ कैरवी बन। एलिफेंट हाथी, चिविंग मीन्स चबाना, च्यूइंग, ओके, च्यू मीन्स जब आप जिस तरह के आप बबल को चबाते हो ना। कैरवी कहते हैं ज़ीरे को, बन कहते हैं मीठी रोटी को, ओके। तो यहाँ पर है द एलिफेंट चिविंग अ कैरवी बन, हाथी जो था वो मीठी ज़ीरे की रोटी को क्या करता, चबा रहा था। द एनिमल्स वेंट इन 2 by 2, फिर क्या हुआ कि जानवर जो थे वो 2-2 करके कश्ती की तरफ गए। द क्रोकोडाइल एंड द कैंगरू, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ एंड कैंगरू को कैंगरू ही कहते हैं, ओके। सो अंडरलाइन द वर्ड चीविंग, कैरवी, बन, crocodile, okay. So come towards the words meaning of stanza second. Chewing means chabana, कैरवी means ज़ीरा, बन means मीठी रोटी, crocodile means मगरमच्छ। Okay, come towards stanza third. The animals went in 3 by 3, अब जानवर 3-3 करके कश्ती की तरफ जा रहे थे, 3 by 3, 3-3 करके। The tall giraffe and the tiny flea, tall लंबा, giraffe ज़राफ़ा, मीन्स जो ज़राफ़ा होता है उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, इसलिए इसको टॉल जिराफ कहते हैं। टाइनी मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा, स्मॉल। फ्ली एक जानवर का नेम है, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पैरासाइट, इसको पिस्सू कहते हैं। तो कहते कि लंबी जो ज़राफ़ा थी वो, और छोटा पिस्सू जो था वो इस कश्ती की तरफ चले गए। द एनिमल्स वेंट इन 4 by 4, जानवर अब 4-4 करके कश्ती की तरफ जा रहे थे। द हिपोपोटामस एंड स्टक इन द डोर, और हिपोपोटामस जो है ये दरियाई घोड़ा होता है उसको कहते हैं। स्टक मीन्स चिमटा रहना, सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टक, ओके। डोर दरवाज़ा, तो कहते हैं कि जो दरियाई घोड़ा था वो कश्ती के दरवाजे के साथ चिमटा हुआ था। सो अंडरलाइन द वर्ड टॉल, जिराफ, टाइनी, फ्ली एंड हिपोपोटामस एंड स्टक। सो वील राइट वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ स्टेंजा थर्ड। जिराफ मीन्स ज़राफ़ा, टाइनी मीन्स बहुत छोटा, फ्ली मीन्स पिस्सू, हिपोपोटामस मीन्स दरियाई घोड़ा, स्टक मीन्स चिमटा हुआ, डोर दरवाज़ा। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स स्टेंजा फोर्थ। द एनिमल्स वेंट इन 5 by 5, अब जानवर 5-5 करके, मीन्स के 5-5 जानवर कश्ती की तरफ जा रहे थे। द बीज मिस्टुक द बियर फॉर अ हाइव, जो शहद की मक्खियाँ थी उन्होंने रीछ को अपने छत्ते के लिए गलत समझा, उन्होंने समझा कि इस रीछ ने हमारे छत्ते को ख़राब किया है। मिस्टुक गलत समझना, बियर रीछ, हाइव मीन्स छत्ता, बीज मक्खियाँ। द एनिमल्स वेंट इन 6 by 6, अब जानवर 6-6 करके, मीन्स के 6 जानवर कश्ती की तरफ जा रहे थे। द मंकी वाज अप टू हिज यूजुअल ट्रिक्स, और जो बंदर थी वो अपने मामूल के मुताबिक जो करतब करती थी, जो नखरे दिखाती थी, वो उस पर लगी हुई थी। सो अंडरलाइन द वर्ड बीज, अंडरलाइन द वर्ड मिस्टुक, बियर, हाइव एंड यूजुअल एंड ट्रिक्स। सो कम टूवर्ड्स वर्ड्स मीनिंग्स। मिस्टुक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मिस्टेक, दिस मीन्स गलत समझा। बीज मक्खियाँ, बेयर रीच, हाइव मीन्स छत्ता, यूजुअल मीन्स मामूल के मुताबिक, ट्रिक्स करतब या नखरे। सो कम टूवर्ड्स स्टेंजा 5। द एनिमल्स वेंट इन 7 by 7, अब जानवर 7-7 करके कश्ती की तरफ जा रहे थे, मीन्स 7 जानवर, ओके। सेड द एंट टू द एलिफेंट, अब एक चींटी ने हाथी से कहा, हु आर यू शॉन, तुम कौन हो। इसको इसलिए शॉन कहते कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, इसलिए इसको कहते कि हु आर यू शॉन, तुम कौन हो। द एनिमल्स वेंट इन 8 by 8, अब जानवर, द एनिमल्स वेंट इन 8 by 8, अब जानवर 8-8 की तादाद में
कश्ती की तरफ जा रहे थे। some were early and some were late। कुछ जानवर जल्दी से आ गई, पहले आ गई, एंड some were late और कुछ ताख़ीर से आ गई, देर से आ गई। So underline the words early and late। So students, early means जल्दी से या पहले से, late means देर से। Okay, now come towards the very last stanza of this poem। The animals went in 9 by 9। अब जानवर 9 की तादाद में कश्ती की तरफ जा रहे थे। They all formed forts and marched in line। अब उन्होंने क्या किया कि 4 लाइंस इन सब ने बनाई और उन लाइंस में ये लोग मार्चिंग करने लगे। मार्च जिस तरह कि मैंने आपको बताया, व्हेन यू वॉक इन अ रेगुलर ऑर्डर इन स्टेप्स। ओके, रेगुलर स्टेप्स एंड रेगुलर ऑर्डर, जब आप क्या करते हो, लाइंस में आप जाते हो, वॉक करते हो ना, और अपने कदम को साथ साथ मिलाते हो एक दूसरे के साथ, उसको हम मार्च कहते हैं। The animals went in 10 by 10। अब जानवर 10 की तादाद में जा रहे थे कश्ती की तरफ। If you want any more, अगर आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो, you can read it again, तो आप इस पोम को दोबारा पढ़ें। सही है ना। So underline the words formed, underline the words word line, marched and line। Formed means बनाया, the second form of form। marched means चलना, and line means कतार।